all are well and fine, and everybody know how to find. You have learned in your earlier classes also that how to find the area of the geometrical figures. Area of geometrical figure means we want to find the area of a circle or area of a triangle or area of a square. We have formulas for everything. We have formula for area of a circle, we have the formula for the area of the triangle, we have the formula for the area of the square, rectangle, rhombus. We have formulas for the calculation of the areas. But how to find the area of the curves? Curves means what? This is a curve. How to find this area? Now this is a curve. How to find the area of this curve? Now to find the area of the curve, we have to use the integration. The concept of integration you all have studied in the previous chapter. Today we will discuss the application of integrals that is to be used in finding the area of the curves, because that is important. Now for this application of integral, हमें सबसे पहले देखना है बेटा कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस चैप्टर के लिए. What we will learn from this chapter? We will learn, very important, the concept of symmetry. Concept of symmetry means this figure is symmetrical about the y-axis. This figure is symmetrical along both the coordinate axes. So a child will learn the concept of symmetry first. Secondly, what we will learn? We will learn to find the area lying above the x-axis or lying below the x-axis or y-axis. And next, to find not only the area of the simple curves, also we will study the area of between the two curves. Area between the two curves, this also we will learn in this chapter. So these are the learning outcomes of our chapter. Now to find the area of these curves, we have a steps by which you can easily find, you will easily learn to find their areas, and the most important part is your marks. So 6 mark question from this chapter you can easily catch up in your hands. That is more important because you want to take the marks. आपको नंबर भी तो लेने हैं, तो नंबर लेने के लिए अगर हम इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारा ये जो कंसेप्ट है एरिया निकालने का, आप आसानी से 6 नंबर आपके हाथ में, इट विल बी इन योर पॉकेट्स. सो लेट्स लर्न दीज स्टेप्स फर्स्ट. टू फाइंड द एरिया ऑफ दीज कर्व्स, what we will do? First of all, we have to draw the sketch. The one step is we have to draw the sketch. Sketch means a rough sketch, not particular values लेकर हमें sketch नहीं निकालना है. We will draw a simple sketch. मान लीजिए मैंने एरिया निकालने के लिए ये sketch plot कर दिया. This is simple. मुझे कोई इसमें values नहीं लेनी है. हमें सर्कल का निकालना हो, पैराबोला निकालना है, हमें कोई values लेने की जरूरत नहीं है. बट कहाँ values लेने की जरूरत है? लाइन का जब हमें निकालना है. Whenever we want to find the area under the line, तो ये लाइन का जो हमें ग्राफ प्लॉट करना है, इसके लिए हमें वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, बिकॉज वो एक परफेक्ट लाइन बनेगी फिर हमारी. तो वैल्यूज लेने के लिए कुछ ज्यादा वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है. टेक x इज इक्वल टू 0, फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y. टेक y इज इक्वल टू 0, find the corresponding value of x, and then we can find this area by using the concept of integration. So first step is I think clear कि हमने इसको फिगर प्लॉट कर दिया. फिगर प्लॉट करने के बाद हम इसकी सिमेट्री चेक करेंगे. The next step, we have to check whether the curve is symmetrical or not. सिमेट्री का फायदा क्या होगा? मान लीजिए हमें ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस कंप्लीट एरिया. तो क्या करेंगे? बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल, तो हम ये हाफ ही एरिया निकालेंगे और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास ये पूरा सिमेट्रिकल फिगर के कॉन्सेप्ट का एरिया आ जाएगा. नाउ थर्ड, जब हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो मुझे लिमिट्स भी तो चाहिए. वो लिमिट्स कहाँ से आएंगी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन?
ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ पैराबोला। हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली एंड वी विल फाइंड द लिमिट्स। लिमिट्स का मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है, ठीक। और उसके बाद हमें देखना है कि हमारा ग्राफ ऐसे बनता है या हमारा ग्राफ along y एक्सिस बनता है, तो हमें या तो dy लेना है या हमें dx लेना है। इसी के अकॉर्डिंगली हमें अपने फंक्शन को चूज करना है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द गिवन लिमिट्स। इंटीग्रेट हो गया तो हमारा एरिया निकल गया, ठीक। अब आप देख रहे हैं वॉट एवर आई हैव प्लॉटेड हेयर ऑल्सो द सेम हमारे पास देखिए इधर भी है एरिया। वी वॉन्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन्स। नाउ दिस एरिया इज अलोंग द एक्स एक्सिस। हमने ये एरिया निकालना है। ए से बी तक आप देखिए हमने इसकी लिमिट भी निकाल ली। पहला स्टेप हो गया, ग्राफ बन गया। सिमेट्री भी हमने देख ली, हमने इसकी लिमिट्स भी निकाल ली। हमने देखा ये अलोंग एक्स एक्सिस है तो y इंटू डी एक्स करके हमारा एरिया। फोर्थ स्टेप भी क्लियर हो गया। पांचवें स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जो हमने हमारे बेसिक फीचर्स में देखा था उसमें था ना कि हमें एक्स एक्सिस के अबव या बिलो, दिस इज बिलो द एक्स एक्सिस, तो हमारा एरिया क्या होगा, मॉड्यूलस साइन के अंदर आएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट टू नोट कि मेरा एरिया अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो मुझे वो मॉड्यूलस के अंदर लिखना है, क्योंकि मेरा एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। लैंड का एरिया, आपके घर का एरिया, आपके बाहर के सराउंडिंग्स का एरिया नेगेटिव नहीं लेना है मुझे, कभी भी हो ही नहीं सकता। मेरी डायमेंशंस कभी नेगेटिव हो सकती हैं क्या? सर्कल का एरिया नेगेटिव ले लोगे आप? नहीं ले सकते हो। इसलिए मुझे इस केस में क्या देखना है, मॉड्यूलस साइन लगाना है ताकि मेरा एरिया की वैल्यू पॉजिटिव रहे। और इस मॉड्यूलस का कंसेप्ट आप 11 तक बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। नाउ ये देखिए, नाउ दिस इज द नेक्स्ट कंसेप्ट dy, जो हमने उसमें देखा था लर्निंग फीचर्स में भी कि अलोंग एक्स एक्सिस देखना है या अलोंग y एक्सिस देखना है। नाउ दिस इज अलोंग y एक्सिस। जब ये अलोंग y एक्सिस आता है तो dy, मैंने यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पर बताया था dx और dy। इफ इट इज अलोंग y एक्सिस तो ये मेरा dy हो गया, df dy हो गया। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट ये भी सारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि मुझे ये एरिया निकालना है। उसके लिए लेट अस डिस्कस समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड कि हाउ टू फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। Yes children, listen very carefully, look very carefully. I want to find the area between the two curves. This I want to find out. First step, I have plotted the graph, sketch हो गया. The first step is clear everybody. Second step में क्या करना है, क्या देखना था हमने इसको सिमेट्री भी देखनी थी। सिमेट्री भी हमने देख लिया, एक्स एक्सिस में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या देखना है, लिमिट्स निकालने के लिए क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स। मान लीजिए मेरे यहाँ पर A और B आ गया, उसके बाद क्या करें, अब ये एरिया जब मुझे निकालना है, मेरे पास इस कर्व की भी इक्वेशन गिवन है, मेरे पास इस कर्व की भी इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हम ये एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर दिस कर्व, दिस कंप्लीट एरिया। आप देख रहे हैं मैं शेड कर रही हूं, दिस कंप्लीट एरिया आई विल फाइंड एरिया अंडर दिस कर्व। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एरिया अंडर दिस कर्व। ध्यान से देखेंगे सब, आई विल फाइंड एरिया अंडर दिस कर्व। मैंने उसको दूसरे उससे कर दिया मोशन से। अब क्या निकला, एरो से भी दिखा देते हैं, ये पूरा एरिया निकाला, उसमें से हमने इतना एरिया माइनस कर दिया तो क्या बचा, रिक्वायर्ड एरिया। ये देख लीजिए आप, रिक्वायर्ड एरिया सेम यू कैन सी हियर,
सेम यू कैन सी हियर, यहां से लेकर यहां तक आपने पहले निकाला, फिर यहां से यहां तक निकाला है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया. वी विल राइट इट लाइक दिस, एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रल a to b fx माइनस gx. दिस इज अलोंग x एक्सिस, तो dx हो गया. y एक्सिस के अलोंग होता तो fy माइनस gy इंटू dy हो जाता. अब इसको निकालने के लिए मान लो किसी को नहीं समझ में आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं. क्या करेंगे आप, सिंपल सा कंसेप्ट बच्चों आप याद रख सकते हो कि अपर कर्व का एरिया माइनस लोअर कर्व का एरिया. इतना तो सभी याद रख सकते हैं कि हाउ टू फाइंड दिस. हम यहां पर लिख भी सकते हैं एरिया ऑफ द अपर कर्व माइनस एरिया ऑफ द लोअर कर्व. ये एक बड़ा सिंपल सा अपर कर्व माइनस लोअर. अदरवाइज ये जो मेथड है कि हम परपेंडिकुलर्स डालकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें और उसके बाद हम शो कर दें कि यहाँ से यहाँ निकाला, फिर ये निकाला और ये बीच में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये एरिया आ गया. ना दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ये आप देखेंगे ये किस चीज का कंसेप्ट है, जो हमने हमारे लर्निंग आउटकम्स में भी देखा था कि एरिया लाइंग बिलो द एक्स एक्सिस और एरिया लाइंग अबव द एक्स एक्सिस. तो ये बिलो वाले एरिया को क्या करूं, मॉड्यूलस में डाल दिया. ये देख रहे हैं आप, क्योंकि नेगेटिव है, एरिया नेगेटिव तो रखना ही नहीं है, तो ये हमारे पास मॉड्यूलस में आ गया. ये वाला नहीं आया क्योंकि तो ऑलरेडी पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसको मॉड्यूलस में रखने की जरूरत ही नहीं है. तो हमारा एरिया कहां से कहां हुआ, पहले ए से लेकर ये के तक, फिर के से लेकर बी तक, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ऐसे ही अगर ये ग्राफ हमारा आगे कंटिन्यू होता रहेगा तो जो एरिया हमारा एक्स एक्सिस के नीचे की साइड में जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो ऊपर की साइड में आते हैं वो पॉजिटिव हैं. बट एरिया का आंसर आप लोगों ने कभी भी माइनस में नहीं लिखना है, हमेशा आपका मॉड्यूलस साइन के साथ पॉजिटिव, और यूनिट भी लिखना है. यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है. व्हाट यू विल राइट, यू विल सिंपल राइट योर आंसर इन स्क्वायर यूनिट्स. दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये यूनिट नहीं लिख रहे हो तो आपके 6 में से आधे नंबर तो चले गए, बचे कितने, 5.5. तो इसीलिए इस चीज को भी ध्यान में रखना है. इस फिगर के भी मार्क्स हैं, 1 मार्क फॉर द फिगर, ये भी है. आपके पास स्टेप्स हैं, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, लिमिट ठीक से लगा रहे हो, उसके भी नंबर हैं. तो इसीलिए ये चीज भी लिखनी इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर यूनिट्स हर क्वेश्चन के साथ. बिकॉज मैथमेटिक्स में जब आप क्वेश्चन को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को एंड करते हैं, वी हैव अ मार्क्स फॉर ईच एंड एवरी स्टेप, फॉर स्टार्टिंग अ क्वेश्चन, फॉर एंडिंग अ क्वेश्चन. दिस इज द एंड. सो स्क्वायर रूट, स्क्वायर यूनिट्स हमें आंसर लिखना जरूरी है, 31 स्क्वायर यूनिट्स. उसके बाद so children, in this I have drawn the graph again on the blackboard. Now let's see, here also I can tell you area A1 and this is the area A2. Now this area is below the x-axis, so what will be the total area will be equal to area A1 plus modulus ले रही हूँ मैं बेटा area A2. Modulus इसलिए लेना है कि it is below the x-axis. The same I have drawn on the PP, I am showing on the presentation. Now after this is this all theory is the basic concept of finding the area of the integral. Next what we can do the problems to solve these, to apply these concept in solving the mathematical problems. That we'll discuss in the next class. Now what we have learned out of it, क्या सीखा बेटा हमने इस चैप्टर से, हमने सीखा कि हमें एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालना है, हमने उसमें सिमेट्री को कैसे यूज करना है, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ध्यान रखना है कि एरिया एक्स एक्सिस के साथ में लिया है या एरिया हमने वाई एक्सिस के साथ लिया. मतलब क्या है, हमने y इंटू डी एक्स लेना है या x इंटू डी वाई लेना है, ये सीखा हमने. और हमने क्या सीखा
कि एरिया हमारे पास x एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, y x एक्सिस के नीचे आएगा तो उसमें हमने ये मॉडुलस को ध्यान में रखना है क्योंकि एरिया हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने क्या किया, हमने इंटीग्रेशन को अप्लाई किया है। अप्लाई का मतलब वी नो हाउ टू इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन, वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर। तो अब ये सब निकालने के बाद हमारा मेन काम क्या रहेगा, इसको इंटीग्रेट करना। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव लर्नड एंड आई थिंक ऑल द चिल्ड्रन नो द entire concept of integration and all the different methods of integration. So in the next class we will discuss, we will apply this concept in solving the mathematical problems, and then till then goodbye and take care of your good health.